Infrared radiation, IR radiation are electromagnetic radiations that lies within electromagnetic spectrum between visible light and microwave radiation. IR जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होती है एंड IR जो है वो विजिबल लाइट और माइक्रोवेव के बीच में प्रेजेंट होती है. The radiation is characterized by wavelength extended from 760 nanometer to 1 mm. जिस रेडिएशन की वेवलेंथ 760 नैनोमीटर से 1 mm तक होती है उसको हम IR रेडिएशंस बोलते हैं. IR radiation can be subdivided into 3 regions A, B and C according to their absorption and their effect upon tissue. IR रेडिएशन को हम absorption और उसका इफेक्ट क्या रहेगा टिश्यू पे इस बेसिस पर हम उसे 3 रीजन में डिवाइड करते हैं A, B and C. Classification of IR radiation. IRA is short and near. Wavelength is 760 to 1400 nanometer. Penetration 5 mm up to dermis. IRB is long and far. Wavelength is 1400 to 3000 nanometer. Penetration is 1 mm up to epidermis. IRC wavelength is 3000 nanometer to 1 mm. Penetration not used therapeutically. Production of IR radiation. IR is produced as the result of molecular motion within heated materials. कोई भी मटेरियल के अंदर हीट है तो उस मटेरियल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करने लग जाएंगे और उसकी वजह से IR रेडिएशन प्रोड्यूस होगी. All hot bodies emits IR as increase in temperature of any material above absolute zero result in vibration and rotation of molecule within the material. सारी hot bodies जो है वो IR रेडिएशन को एमिट करेगी. किसी भी मटेरियल के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा above absolute zero तो वाइब्रेशन और रोटेशन होगा मॉलिक्यूल्स का. Source of IR. Natural source is the sun. Artificial source is the luminous generator and non-luminous generator. Luminous generator, they consist of tungsten filament in a large glass envelope which contain gas at low pressure. Inside glass bulb there is a silver to provide reflection. Luminous generator जो है वो large glass envelope से बना हुआ होगा जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होगा और गैस होगी एट लो प्रेशर और सिल्वर होगा जो कि रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा. Work on same principle as simple electric light bulb. Filament is heated to high temperature around 3000 degrees Celsius by current passing through it. जैसे एक सिंपल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब काम करता है वैसे ही ल्यूमिनस जनरेटर काम करेगा. जैसे ही करंट पास होगी फिलामेंट जो है वो हाई टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस से हीट होगा. Luminous generator are sometimes called radiant heat as they emit both IR and visible light. ल्यूमिनस जनरेटर को हम रेडिएंट हीट भी बोलते हैं क्योंकि वो IR और विजिबल लाइट दोनों को एमिट करता है. द स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 350 नैनोमीटर टू 4000 नैनोमीटर. द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वेव हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 1000 नैनोमीटर. ल्यूमिनस जनरेटर में स्पेक्ट्रम जो है वो 350 नैनोमीटर से 4000 नैनोमीटर में लाई करेगा और जो वेवलेंथ का ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन है वो है 1000 नैनोमीटर. नॉन ल्यूमिनस जनरेटर इन दैट टाइप 1 simple type of element producing IR rays consists of a coil of a wire wound on a cylinder with some insulating material such as fire clay and porcelain. Non-luminous generator में simple type 1 element IR rays को produce करेगा जो कि coil of wire से बना हुआ होगा. ये जो वायर है वो सिलेंडर के ऊपर वाउंड होगा और उसके साथ insulating material fire clay और porcelain भी होगा. An electric current is passed through a wire and produce it. IR rays are emitted from the hot wire and from the fire clay former which is heated by conduction. जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वायर में IR जो है वो प्रोड्यूस होगी from the hot wire and fire clay. Type 2 more usually the coil of wire is embedded in the fire clay or placed behind the plate of fire clay which is commonly painted black. Type 2 में कॉइल ऑफ वायर जो है वो एम्बेडेड होगा फायर क्ले में या फिर जो कॉइल ऑफ वायर है वो फायर क्ले के पीछे प्लेस किया जाएगा और फायर क्ले की जो प्लेट है वो ब्लैक कलर की होगी. बोथ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इनटू द सर्किट बाय स्क्रू कैप डिवाइस एंड प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ अ पैराबोलिक और जेंटली कर्व्ड स्फेरिकल रिफ्लेक्टर. दिस रिफ्लेक्टर इज माउंटेड ऑन अ स्टैंड एंड इट्स पोजीशन कैन बी एडजस्टेड एज रिक्वायर्ड. टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे बाय स्क्रू कैप डिवाइस और दोनों को कनेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्टर के फोकल पॉइंट पर रखा जाएगा. रिफ्लेक्टर जो है वो स्टैंड से कनेक्टेड रहेगा
और उसकी पोजीशन को एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। थर्ड टाइप ऑफ नॉन ल्यूमिनस जनरेटर consists of a steel tube approximately 8 mm in diameter within which spiral of wire is embedded with some electrical insulator which is good conductor of heat। थर्ड टाइप का जो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर है वो स्टील ट्यूब से बना हुआ होगा जिसका डायमीटर 8 mm होगा और उसके अंदर वायर होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होगा जो कि हीट का गुड कंडक्टर होगा। करंट इज पास टू द सेंट्रल वायर and produce heat which is conducted by the insulator to the steel tube which emits IR rays। जैसे ही सेंट्रल वायर में करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। इंसुलेटर जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है इसीलिए इंसुलेटर हीट को कंडक्ट करेगा जिसकी वजह से IR रेज एमिट होगी। The tube is bent into 2 to 3 large turns and mounted in a suitable reflector। ट्यूब को 2 से 3 लार्ज टर्न्स में बेंड करके सुटेबल रिफ्लेक्टर में फिक्स किया जाएगा। All non-luminous elements required some time to heat before emission of wave to its maximum intensity। सारे जो non-luminous element है उन्हें उनकी maximum intensity को emit करने के लिए कुछ न कुछ टाइम चाहिए होता है जिसे हम warm-up टाइम भी बोलते हैं। Elements of first type which emits rays directly from the wire requires about 5 minutes but other need longer 10 to 15 minutes according to the construction। नॉन ल्यूमिनस जनरेटर के 3 टाइप होते हैं, उसमें से जो पहला टाइप है उसे 5 मिनट लगते हैं रेज को एमिट करने के लिए और टाइप 2 and 3 रिक्वायर्स 10 to 15 मिनट्स उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से। Lamps must therefore be switched on at appropriate time before they are required। The construction of all lamps should be such that reflector and other parts does not become unduly hot ड्यूरिंग यूज। हमें जब लैंप्स की ज़रूरत है उससे पहले ही स्विच ऑन कर देना चाहिए। नॉन ल्यूमिनस में अगर टाइप 1 है तो 5 मिनट पहले और टाइप 2 और 3 है तो 10 to 15 मिनट पहले ही स्विच ऑन कर देना चाहिए। लैंप्स को हमें कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसका जो रिफ्लेक्टर है वो और उसके जो दूसरे पार्ट है वो गर्म ना हो जाए जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट देयर इज़ अ वायर गार्ड टू प्रिवेंट इनएडवर्टेंट कॉन्टैक्ट विद द एलिमेंट। वायर गार्ड का होना बहुत ज़रूरी है एलिमेंट के साथ इनएडवर्टेंट कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। नॉन ल्यूमिनस एलिमेंट प्रोड्यूस IR विद वेवलेंथ फ्रॉम 750 नैनोमीटर to 15,000 नैनोमीटर। द मैक्सिमम एमिशन इज इन द रीजन ऑफ 4,000 नैनोमीटर। नॉन ल्यूमिनस एलिमेंट जो है वो 750 नैनोमीटर से 15,000 नैनोमीटर की वेवलेंथ की IR को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन जो मैक्सिमम एमिशन है वो 4,000 नैनोमीटर में होता है। एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ IR रेज। IR rays is strongly absorbed near the skin surface and heat is carried to deeper tissue by circulating fluids। IR rays जो है वो स्किन सरफेस में एब्जॉर्ब होती है और सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स की हेल्प से हीट जो है वो डीपर टिश्यू तक पहुंचती है। एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन डिपेंड्स अपॉन कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे एब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन डिपेंड रहते हैं। First one is the wavelength of the rays, second is angle of the incident rays, third one is intensity of the emitting source, fourth one is the distance of the source from the tissue। Physiological effect, first one is cutaneous vasodilatation। Heating with IRR leads to the vasodilatation of the blood vessels as a result of cutaneous vasodilatation means increase in the diameter of the vessels of the skin। जब भी हम IRR का यूज़ करते हैं तो स्किन के जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ये 2 रीजंस की वजह से होता है। पहला है रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर हिस्टामिन लाइक सब्सटेंस। हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। सेकेंड इज एक्सोन रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। वासोडाइलेटेशन कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इन द क्यूटेनियस सर्कुलेशन। वासोडाइलेटेशन जो है वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाता है क्यूटेनियस सर्कुलेशन में। वासोडाइलेटेशन स्टार्ट्स आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 to 2 मिनट। 1-2 मिनट में वासोडाइलेटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। रेडनेस ऑफ स्किन दैट अपीयर्स एज इरेगुलर पैची एरिथमा and the rate at which the erythema develops at its intensity are related to the rate and degree of heating। IRR देने के बाद एरिथमा होगा जिसमें स्किन जो है वो रेड कलर की हो जाएगी और एरिथमा जो है वो डिपेंड करेगा कि हीट की इंटेंसिटी क्या थी और कौन सी डिग्री पे दी गई थी। लोकल एरिथमा लास्ट फॉर अबाउट 30 मिनट आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज़ बीन स्टॉप्ड। ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद 30 मिनट तक लोकल एरिथमा जो है वो विजिबल रहेगा। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म।
Increased temperature by IRR leads to increase in metabolic activity within the superficial tissue due to direct effect of heat on chemical process in the cell. जैसे ही हम IRR देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी सुपरफिशियल टिश्यू की, क्योंकि IRR जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगी केमिकल प्रोसेसेस को जो भी सेल के अंदर हो रही होगी उसको. इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लीड्स टू इम्प्रूव सेल फंक्शन एंड इम्प्रूव टिश्यू हीलिंग. जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी सेल फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और टिश्यू हीलिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा. न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट. The heat production of IRR leads to relief pain by stimulation of sensory nerve. A beta nerve fibers lead to inhibition of the pain at the level of spinal cord. IRR जो भी हीट प्रोड्यूस करेगी वो स्टिमुलेट करेगी सेंसरी नर्व को पेन रिलीफ करने के लिए और इनहिबिट करेगी पेन को स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर. डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ मसल स्पिंडल लीडिंग टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल. मसल स्पिंडल की एक्टिविटी जैसे ही डिक्रीज होगी तो मसल रिलैक्स हो जाएगा. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूविंग सर्कुलेशन एंड इंक्रीज वीनस रिटर्न, दस रिमूविंग सोर्स ऑफ पेन स्टिमुलेशन. जैसे ही सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा और सोर्स ऑफ पेन स्टिमुलेशन भी रिमूव हो जाएगा. इफेक्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू. The heat effect of IR leads to increase in the extensibility of connective tissue and therefore is used prior to exercise to increase range of motion, stretching and mobilization exercise. IR जो है वो connective tissue की extensibility को increase करेगा. Stretching और mobility की exercise करवाने से पहले हम IR देंगे जिसकी वजह से range of motion increase होगा. So IR must be used in conjunction with stretching and range of motion exercise. Sweating. With prolonged or intense cutaneous heating, sweating will start to occur. This will absorb some of the applied IR rays and leads to the surface cooling as it evaporates. ज़्यादा देर के लिए या फिर ज़्यादा इंटेंसिटी से अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से कुछ IR रेस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो हेल्प करेगी सरफेस को कूल रखने में. थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ IR. First one is relief of pain. IR is frequently an effective means of relieving pain. IR जो है वो पेन को रिलीफ करने में हेल्प करता है. When the heating is mild, the relief of pain is probably due to sedative effect on the superficial sensory nerve ending. जब हम कम हीट प्रोवाइड करते हैं तो पेन रिलीफ होगा क्योंकि सुपरफिशियल सेंसरी नर्व एंडिंग पर सीडेटिव इफेक्ट होगा. स्ट्रॉन्ग हीटिंग स्टिमुलेट्स द सुपरफिशियल सेंसरी नर्व एंडिंग एंड सो रिलीफ पेन बाय काउंटर इरिटेंट इफेक्ट. जब हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो पेन रिलीफ होगा क्योंकि सुपरफिशियल सेंसरी नर्व एंडिंग पर काउंटर इरिटेंट इफेक्ट होगा. पेन ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लामेशन और रीसेंट इंजरी इज रिलीव्ड मोस्ट इफेक्टिवली बाय माइल्ड हीटिंग. अगर पेन जो है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन या फिर रिसेंट इंजरी की वजह से है तो हमें माइल्ड हीट ही प्रोवाइड करनी चाहिए. व्हेन पेन इज ड्यू टू लीजन्स और मोर क्रॉनिक टाइप, स्ट्रॉन्गर हीटिंग इज रिक्वायर्ड. जब हमें पेन लीजन्स की वजह से या फिर क्रॉनिक टाइप की वजह से हो तो हमें स्ट्रॉन्ग हीट ही प्रोवाइड करनी चाहिए. Muscle relaxation. Muscle relax most readily when the tissues are warm and the relief of pain also facilitates relaxation. जब हम टिश्यू को थोड़ा सा वार्म करते हैं तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और जैसे ही मसल रिलैक्स होगा तो पेन डिक्रीज होगा. आफ्टर अ रेडिएशन मूवमेंट कैन फ्रीक्वेंटली बी मेड थ्रू अ ग्रेटर रेंज देन बिफोर एंड द रिलीफ ऑफ पेन मेक्स इट पॉसिबल टू परफॉर्म एक्सरसाइज मोर एफिशिएंटली. IR देने के बाद मूवमेंट जो है वो ग्रेटर रेंज में होने लगती है और पेन डिक्रीज हो जाता है. इसकी वजह से एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकती है. इंक्रीज ब्लड सप्लाई. This effect is more marked in superficial tissue and may be used in treatment of superficial wound and infections. Increase in blood supply जो है वो superficial wound and infection को ठीक करने के लिए यूज होता है. A good blood supply is essential for healing to take place and if there is infection, the increase in number of WBCS and increase in exudation of fluid are of assistance in destroying the bacteria.
ब्लड सप्लाई का इंक्रीज होना हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही एसेंशियल है और अगर कोई इन्फेक्शन है तो WBC नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे और एक्सूडेशन ऑफ फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सूडेशन ऑफ फ्लूइड मीन्स प्रोटीन रिच फ्लूइड और ये दोनों मिलकर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। When superficial structure are affected, for example small joints of a hand and feet, there may be some heating and consequent vasodilatation. This will increase the supply of oxygen and foodstuff available to the tissue, accelerate the removal of waste product and helps to bring out the resolution of inflammation. जब भी superficial tissue affect होता है जैसे कि स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट, तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से वाजोडाइलेटेशन होगा और ये ऑक्सीजन और फूड स्टफ की सप्लाई को इंक्रीज करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालेगा और इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करेगा। टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, फर्स्ट वन इज चॉइस ऑफ अपैरेटस। एक्यूट इन्फ्लेमेशन और रिसेंट इंजरी सेडेटिव इफेक्ट ऑफ नॉन ल्यूमिनस इज इफेक्टिव। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या फिर रिसेंट इंजरी है तो हम नॉन ल्यूमिनस जनरेटर यूज करेंगे जो कि सेडेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। फॉर क्रॉनिक टाइप ऑफ लीजन्स, काउंटर इरिटेंट इफेक्ट ऑफ ल्यूमिनस जनरेटर इज इफेक्टिव। अगर क्रॉनिक टाइप ऑफ लीजन है तो हम ल्यूमिनस जनरेटर यूज करेंगे जो कि काउंटर इरिटेंट इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। सेकेंड वन इज पेशेंट पोजिशन शुड बी वेल सपोर्टेड, suitable with the area of the treatment should be exposed। पेशेंट की जो पोजीशन है वो हर तरफ से सपोर्टेड रहनी चाहिए, suitable होनी चाहिए और जो एरिया हम ट्रीट कर रहे हैं should be exposed। Explanation, explain the nature and the effect of treatment to the patient। थेरापिस्ट को पेशेंट को ये एक्सप्लेन करना होगा कि जो ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं उसका नेचर और इफेक्ट क्या रहेगा। Examination and testing, examine the skin that is to be treated एंड टेस्ट द थर्मल सेंसेशन। जिस एरिया में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस एरिया को हमें टेस्ट करना चाहिए कि पेशेंट को कोई सेंसेशन इम्पेयरमेंट तो नहीं है विथ द हेल्प ऑफ थर्मल सेंसेशन। थर्ड वन इज apparatus। If a non-luminous lamp is chosen, switch it before 5 minutes to allow the warm-up time। अगर हम ट्रीटमेंट के लिए नॉन ल्यूमिनस लैम्प को सिलेक्ट करते हैं तो हमें उसे 5 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से वो अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। ल्यूमिनस लैम्प डज नॉट रिक्वायर्ड वार्म अप टाइम। ल्यूमिनस लैम्प को वार्म अप टाइम की जरूरत नहीं होती। फोर्थ वन इज सेटिंग अप। एक्सपोज द स्किन टू बी ट्रीटेड। जिस एरिया में हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं दैट एरिया शुड बी एक्सपोज्ड। कवर आई, A towel is sufficient during the treatment। आई जो है वो कवर रहनी चाहिए with the help of towel। The position of lamp is such a way that ray strikes at 90 degree to the skin। लैंप की पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि रेस जो है वो सीधा स्किन को स्ट्राइक करे। Set a lamp at appropriate distance। लैंप को हमें appropriate distance पे सेट करना चाहिए। For a large output, set the lamp at 70 to 75 centimeter। अगर लैंप का आउटपुट लार्ज है तो डिस्टेंस बिटवीन द स्किन एंड द लैंप शुड बी 70 to 75 centimeter। For a small output, set the lamp at 40 to 45 centimeter। अगर आउटपुट जो है वो स्मॉल है तो डिस्टेंस बिटवीन द स्किन एंड द लैंप शुड बी 40 to 45 centimeter। फिफ्थ वन इज इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग। Advise the patient about the required level of heat and it must not be as hot as it can cause burn। पेशेंट को कितने लेवल तक का हीट रिक्वायर्ड है ये हमें एडवाइस कर देना चाहिए और हीट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो स्किन को बर्न करे। कई बार पेशेंट को ये लगता है कि ज़्यादा हीट लेने से वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें पेशेंट को पहले से ही रिक्वायर्ड लेवल ऑफ हीट के बारे में बता देना चाहिए। आस्क द पेशेंट नॉट टू टच एनी पार्ट ऑफ द लैंप एंड नॉट टू मूव ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। पेशेंट को हमें स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए कि लैंप के किसी भी पार्ट को टच ना करे या फिर ट्रीटमेंट के दौरान मूव ना हो। अलर्ट द थेरापिस्ट इफ इट इज मोर देन कंफर्टेबल लेवल ऑफ हीटिंग। अगर हीट जो है वो कंफर्टेबल लेवल से ज्यादा है तो थेरापिस्ट को अलर्ट करे। सिक्स्थ वन इज द एप्लीकेशन। इंटेंसिटी इन मोस्ट IR लैम्प इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्टेंस। ज्यादातर IR लैम्प की जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस ही कंट्रोल करता है। डबलिंग द डिस्टेंस द इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू 1 क्वाड्रेंट। अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है 1/4। ट्रिपलिंग द डिस्टेंस द इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू 1/9। स्किन और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको ट्रिपल कर देते हैं तो इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 1/9 से। सेवेंथ वन इज टर्मिनेशन। एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट स्किन शुड बी चेक्ड। जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो हमें एक बार स्किन को चेक कर लेना चाहिए। ऑन पाल्पेशन माइल्ड और मॉडरेट वार्मथ इज फेल्ट। जब हम स्किन को पाल्पेट करेंगे तो हमें जो स्किन है वो थोड़ी सी वार्म लगेगी।
Moderate erythema should be visible. Erythema जो है वो visible होगा. Erythema tends to vary with the skin color, not just temperature. Erythema जो है वो सिर्फ और सिर्फ temperature पे depend नहीं रहेगा. It will vary according to the skin color. Contraindication. It tells us when we are not supposed to use IR rays. First one is impaired sensation. Patient with impaired sensation in the area to be treated will not be able to determine if excessive heating. जिस एरिया में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस एरिया में अगर वीक सेंसेशन है तो पेशेंट जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि हीट ज़्यादा है या फिर कम है. Impaired circulation. When there is a history of defective circulation from any circulatory diseases such as atherosclerosis, deep vein thrombosis and Buerger's disease, care must be taken not to administer heat over the area with the impaired circulation. जिस एरिया में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं अगर उस एरिया में इम्पेयर्ड सर्कुलेशन यानी कि वीक सर्कुलेशन है और कोई ऐसा डिसीजेज है जो सर्कुलेटरी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ऐसे एरिया में हमें हीट नहीं देनी चाहिए. डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस. हीट मस्ट नॉट बी गिवन ओवर एनी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन. स्किन लीजन सच एज फंगल इन्फेक्शन. हीट टेंड्स टू इरिटेट स्किन लीजन्स. अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो हमें हीट नहीं देनी चाहिए वरना स्किन को इरिटेशन हो सकती है. मेटल रिटेन्स द हीट एंड विल कॉज ए बर्न टू द अंडरलाइंग टिश्यू. जिस एरिया में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं अगर उस एरिया में मेटल इम्प्लांट है तो हमें हीट नहीं देनी चाहिए बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो अंडरलाइंग टिश्यू को बर्न कर देगा. एज. एल्डरली पेशेंट्स जनरली हैव इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसेशन एंड सर्कुलेशन. जनरली एल्डरली पेशेंट में सेंसेशन और सर्कुलेशन का इम्पेयरमेंट रहता ही है, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो हमें हीट नहीं देनी चाहिए. Additional dangers in elderly patients include unreliable reporting of the intensity of the heat and the tendency to fall asleep. कई बार ऐसा होता है कि जो एल्डरली पेशेंट है वो इंटेंसिटी डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि ज़्यादा है या कम है, इसकी वजह से वो थेरापिस्ट को बता नहीं सकते, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो सो जाए. डीप एक्सरे थेरापी. Patients who are on deep X-ray therapy or who have had it in the past 3 months must not be given infrared as deep X-ray therapy reduces sensory appreciation. अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसने डीप एक्सरे थेरापी ली हुई है तो ऐसे पेशेंट को हम इंफ्रारेड नहीं देंगे क्योंकि एक्सरे थेरापी जो है वो सेंसरी एप्रिशिएशन को कम करती है. स्किन ट्यूमर. Patients with skin tumor if receives infrared as tumor growth may be increased. जिन पेशेंट को स्किन ट्यूमर है ऐसे पेशेंट को हम इंफ्रारेड नहीं देंगे क्योंकि स्किन ट्यूमर जो है वो इंफ्रारेड देने से ग्रो करेगी. एक्यूट इन्फेक्शन. All acute infections are contraindication to infrared rays as the increase in temperature will exacerbate the infective process. अगर कोई acute infection है तो ऐसे में भी इंफ्रारेड नहीं देनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाएगा.